Your time. Hello, how are you all? Yeah, I'm just waiting for others also to get online. So, all ready for the class? Welcome to English. Good. Let's wait for a few seconds for others also to join. Are you all safe? Yes, right now very few girls have joined us. So, girls, today we are taking lesson number 2, and the title of the lesson is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Can you understand the meaning of this title? We are not afraid to die. Means हम मरने से नहीं डरते. If we can all be together, अगर हम सब एक साथ हैं, like if the whole family is together and if something happens to all, then we don't mind. We are not afraid of it. तो एक बहुत ही डीप मैसेज इस टाइटल के थ्रू आपको मिलता है. Yes, I can see few girls who have joined us. So this lesson is very interesting. Who have joined us. Okay, tell me one thing. Uh, how many of you like traveling? घूमना किस किस of you like to travel? है ना? So especially Europeans, they are very adventure loving. उनको एडवेंचर बहुत पसंद है एंड इतना पसंद है कि कई बार तो वो अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल देते. तो ऐसे ही एक फैमिली के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. दे टू वर वेरी एडवेंचर लविंग एंड so they planned for a long journey to take a trip round the world, and that too through sea. तो एक समुद्री यात्रा वो करने जा रहे थे जो कि पूरे अर्थ को वो एक सर्कल करना चाहते थे. इससे पहले करीब 200 इयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने ये यात्रा की थी. So the author of this lesson wanted to go through the world like Captain James. Now it was not an easy thing. आसान नहीं था ये. इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करने की जरूरत थी. And he says we prepared for 16 years. 16 years तक वो प्रिपरेशंस करते रहे. उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी समुद्री यात्राएं की ताकि उनको समझ आ जाए, उनमें वो स्किल्स डेवलप हो जाए सी जर्नी करने की. और व्हेन दे अंडरस्टूड कि नाउ दे आर रेडी, सेलिंग सीखा होगा और शिप को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारे आर्ट, ये सारी स्किल्स उन्होंने सीखी होंगी. और जब उन्होंने ये सोचा कि नाउ दे आर रेडी, सो दे फाइनलाइज्ड. तो उसके लिए एक बोट की जरूरत थी. दे नीडेड अ बोट. सो व्हाट दे डिड, जो ऑथर थे उन्होंने एक बोट प्रिपेयर कराई. वो कहने को तो बोट थी लेकिन इट वाज अ शिप और ए ह्यूज बोट, यू कैन से. बहुत बड़ी बोट थी. मालूम है कितनी बड़ी थी? 23 मीटर्स लॉन्ग. और उसका वेट मालूम है कितना था? 30 टन्स. तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी होगी.
एंड उसको नाम दिया, ही नेम्ड हिम वेव वॉकर. वेव वॉकर मतलब जो वेव्स पर चल सके. ठीक है, तो इस तरह से screen share. Now I'll share screen with you so that you can also go through uh, the summarized. We'll have an overview of the lesson because the lesson is too big and we'll have to, yes, we'll have to see the summary of the lesson. Just a few seconds. Uh, we are just trying to set up the screen. Beta, just hold on for a few seconds. Right. Yes, I hope now you all can see the screen with me. Yes. So they made preparations, and the author describes that he thought that it would be a very thrilling experience for them all. And so finally, they made all preparations and they began for the journey. And that journey was going to be round the world, right? Can you all see the screen? Yes, my dear learners. So the narrator with his wife Mary and two little children, Jonathan and Suzanne, and with some crewmen. क्योंकि इतनी बड़ी बोट को अकेले नरेटर तो नहीं हैंडल कर सकता था अपनी फैमिली के साथ. So he needed some crewmen, right? And as I told you that it took 16 years for them to prepare. So how long was this journey to be? They estimated that the journey would take 3 years. So you see how long the journey was going to take. It would take 3 years. And कितनी लंबी होने वाली थी जर्नी? 2,55,000 kilometers long. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप 3 years के लिए कहीं जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी होंगी, राइट? So the journey started in July 1976. And the first phase of journey was from Plymouth in England, where they lived, to Cape Town in South Africa. तो कहाँ से शुरू किया उन्होंने? प्लाईमाउथ, जो कि इंग्लैंड में एक जगह थी, वहां से स्टार्ट करके वो पहले केप टाउन पहुंचे साउथ अफ्रीका में. अब ये जो पार्ट था उनकी जर्नी का, दैट पास्ट ऑफ वेरी प्लेजेंटली, बहुत अच्छा रहा, एंजॉय किया उन्होंने जर्नी को, और वेदर भी बहुत अच्छा रहा. सो दे ऑल एंजॉयड इट. As the narrator knew that the southern Indian Ocean was very rough, stormy, and dangerous, so before heading to the east, he hired two crewmen, an American named Larry Vigil and a Swiss named Seigler. क्योंकि नरेटर को पता था कि आगे का जो हमारी जर्नी है वो हमने किस में जाना है, सदर्न इंडियन ओशन से हम लोग ट्रेवल करेंगे. तो वो एक बहुत रफ ओशियन था, स्टॉर्म्स और बहुत डेंजरस उनकी जर्नी का पार्ट था ये. तो उन्होंने क्या किया, दो क्रूमैन और वहां से केप टाउन से ऐड किए. एक अमेरिकन था जिसका नाम था लेरी विजिल, एंड
One was a Swiss named Seigler. Now, जब केप टाउन से, as they began from Cape Town, they started facing strong winds for few weeks. जैसा कि एप्रीहेंड कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि ऐसा होने वाला है, आगे का जो हमारा ट्रेवल है वो इतना स्मूथ नहीं होने वाला, और वही हुआ. उन्होंने शुरू में ही स्ट्रॉन्ग विंड्स फेस की. कहते कि द साइज ऑफ द वेव्स वाज अप टू 15 मीटर्स हाई एंड इट फ्राइटन देम. आप इमेजिन कर सकते हो 15 मीटर्स, करीब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं आपको आइडिया दूं तो अराउंड 5-6 फ्लोर्स, 5-6 मंजिल ऊंची वेव्स आए तो उनको तो देख के ही आदमी बहुत ज्यादा डर जाएगा. तो वो लोग बहुत डर भी रहे थे. On December 25, when they were 3,500 kilometers east of Cape Town, although the weather was very bad, they celebrated Christmas. अब आप तो जानते ही हैं कि 25th December Christmas is the biggest day for Englishmen. So although the weather was bad, मौसम बहुत खराब था और वो केप टाउन से करीब 3005 किलोमीटर्स ईस्ट को बढ़ चुके थे. But since it was the biggest festival of theirs, so they enjoyed it, they celebrated. Now they hoped that the weather would change. उन्होंने सोचा था कि मौसम बदलेगा, अच्छा हो जाएगा. But what happened? It did change. मौसम तो बदला, लेकिन but for the worse. अच्छा वो सोच रहे थे शायद बेटर होगा, हो गया उसके ऑपोजिट और वर्स हो गया. On 2nd January, the waves rose very high. The wind screamed. They dropped sail and secured everything tightly with the ropes. अब 2nd January को वेव्स का जो हाइट थी वो और बढ़ गई. हवा इतना चीख रही थी, कानों में इतना दर्द हो रहा था. अब उन्हें समझ आया कि अभी फिलहाल हमको सेल करना बंद कर. उन्होंने सब बंद कर दिया जो इंजन वगैरह था और हर चीज को टाइटली रस्सियों से बांध दिया. Apprehending the danger, they equipped themselves with lifelines, oilskins and life jackets. अब ये समझ गए कि खतरा है, उन्होंने अपनी भी लाइफ सेविंग जैकेट्स पहन ली. At about 6 p.m., there was a dreadful silence. The wind dropped and the sky became dark. कहते ना तूफान आने से पहले की शांति, तो ऐसा ही कुछ माहौल हो गया. हवा एकदम, जो इतनी तेज स्टॉर्मी विंड्स थी वो एकदम बंद हो गई और आसमान एकदम डार्क हो गया. देन सडनली ऐसे लगा जैसे कि कोई एक्सप्लोजन हुआ हो, और a huge wave broke over the ship and the narrator's head hit against the wall. अचानक से एक बहुत, और भी जितने ऊंची वेव्स आ रही थी उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची वेव शिप पर आकर गिरी, और इसके लिए वो तैयार नहीं थे. सो नरेटर का जो सिर था वो एक दीवार से जाकर, बोट की दीवार से जाकर टकरा गया. नॉट लूजिंग होप. अब नरेटर ने भी काफी प्रेपरेशंस की हुई थी, काफी स्किल्ड था, काफी उसको एक्सपीरियंस था, तो ही डिड नॉट लूज होप. पेशेंस रखा उसने रेलिंग्स को पकड़ लिया. लेकिन उसके बाद की जो वेव्स आई, उन्होंने जैसे डॉल को टॉस कर दें, इधर से उधर, उधर से उधर, है ना, इस तरह से उसको टॉस कर दिया. मतलब he was not able to control himself. अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहा. His ribs cracked, teeth broke and mouth was filled with blood. तो क्या हुआ, जब आप इधर से उधर टकराएंगे तो दांत भी टूट गए, रिब्स भी क्रैक हो गए और मुंह में सब खून भर गया. बट उसने व्हील को पकड़कर लटका रहा और उसको नहीं छोड़ा. Now there was water everywhere on the ship. सब जगह, क्योंकि वेव ऐसे आई जैसे ऊपर से कुछ गिरा हो उनके ऊपर, साइड से नहीं आई, तो पूरी शिप पर वाटर ही वाटर हो गया. Suddenly the door in the deck opened and Mary, his wife, appeared.
अचानक से दरवाजा खुला और वहां से उसकी वाइफ मैरी आई एंड शी टोल्ड हिम दैट द बोट वाज सिंकिंग। बोट डूब रही क्योंकि इतना पानी ऊपर से जो आया। बट राइटर ने उसको उसी टाइम वार्न किया कि प्लीज होल्ड द व्हील, नहीं तो उसका भी वही हाल होगा, वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। Then the narrator went down to check the other members and he saw Larry and Herb trying to pump out the water. क्या किया नरेटर ने कि मैं सबको चेक तो करूं बाकी क्रूमैन क्या कर रहे हैं, क्या वो ठीक हैं या नहीं। तो वो नीचे गया, बोट में ऐसे फ्लोर्स थे, वो नीचे गया तो उसने देखा कि जो दो क्रूमैन उसने ऐड किए थे, लैरी एंड हर्ब, दे वर मैडली पंपिंग आउट वाटर, क्योंकि बोट में से पानी को बाहर सी में फेंकना था, तभी बोट सिंक होने से बच सकती थी। ही ऑल्सो सॉ, अब उसने और क्या देखा, ही ऑल्सो सॉ Sue's swollen head and a deep cut on her arm। देखा कि उसका फोरहेड सूजा हुआ है, एक बम्प बना, गोला बना हुआ है, और एक आर्म पर भी एक डीप कट है। बट सी दैट लिटिल चाइल्ड Sue, she did not complain। कितने थे दोनों बच्चे, 6 and 7 years के थे, तो आप सोच सकते कितने छोटे थे, थोड़ी सी चोट लगने पर शोर मचा सकते थे। लेकिन these children were seeing what was happening and what their father was doing, so Sue did not complain कि मुझे चोट लग गई है, because वो अपने फादर को और परेशान नहीं करना चाहती थी। The sideboard of the ship had bulged inwards। Clothes, charts, toys, etc. were floating। तो बोट टूट गई थी, अंदर को चली गई, और जितनी भी चीजें थी वो सब वहां पानी में फ्लोट कर रही थी। The narrator found the hammer, screws, canvas and made some repairs to stop the water। अब उन्होंने कैसे करें, कुछ तो रिपेयर्स करने पड़ेंगे ना, तो वो सारी चीजें ढूंढी कि कैसे हम बोट को रिपेयर कर दे जहां से वो टूटी है। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि सारा सामान वहां पर तैर रहा था, तो मोर प्रॉब्लम्स अरोज। हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए, तो इलेक्ट्रिक पंप खराब हो गया, स्पेयर हैंड पंप्स ढूंढे, लेकर आए, फिर एक और इलेक्ट्रिक पंप उन्होंने स्पेयर रखा हुआ था, उसको यूज किया। Now, by the morning of January 3, the situation was somewhat under control। कुछ situation control में आई। What they did, अब इतना उन्होंने for the last 2 days 2 nights कोई रेस्ट नहीं था, so उन्होंने रोटेशन से बारी बारी से 2 hours की स्लीप उन लोगों ने ली। They saw that the boat was badly damaged and they could not reach Australia safely। अब जो नरेटर था, ऑथर था, उसने ये देखा कि बोट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, और अगर इसी तरह से हम ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सेफ नहीं पहुंच सकते। तो क्या किया उन्होंने, द नरेटर चेक द चार्ट्स एंड फाउंड 2 स्मॉल आइलैंड्स। अब उनके पास एक ही तरीका था कि जल आस पास उनको कोई ऐसा जमीन मिल जाए जहां पर वो एक बार को टिक सके और बोट को रिपेयर कर सकें। तो जैसे मैंने कहा कि नरेटर ने बहुत तैयारी करी हुई थी, बहुत स्टडी किया हुआ था, तो उनको चार्ट्स, कंपास, मैप्स ये सब देखने आते थे। तो उन्होंने जब चार्ट्स चेक किए तो उनको 2 स्मॉल आइलैंड्स नजर आए, बिल्कुल जैसे मैप में जैसे होते ना पिन किससे एक डॉट लगा दी हो, इतने छोटे छोटे से। उनमें से एक था आइल एम्स्टरडम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। अब वही उनकी उम्मीद की सिर्फ एक उम्मीद की किरण थी, और उसने अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंगली जिस डायरेक्शन में वो आइल एम्स्टरडम आइलैंड जो उनको नजर आ रहा था, वो उसने उस तरफ को वो लोग बढ़। अब जनवरी 5 सिचुएशन बहुत टेरिबल हो गई, बहुत खराब हो गई। सो द नरेटर वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन। उसने सोचा बच्चे बहुत घबरा रहे होंगे, चलो मैं एक बार जाकर उनको संभाल।
John, his son, asked him if they were going to die. बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो महसूस कर रहा है कि क्या हो रहा है, बहुत टेंशन है कि शायद हम लोग मरने वाले हैं। जब उसने ये पूछा अपने डैड से, तो डैड, नरेटर ने उसको कहा नहीं नहीं, एश्योर किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसने क्या कहा, डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू, मॉम, स्यू एंड आई। कितनी बड़ी बात कही उस छोटे से बच्चे ने, कैसे अपने फादर को, रादर वो समझा रहा है कि हम लोग मरने से नहीं डरते, अगर हम चारों इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते। अब सोचिए उस फादर का क्या हाल हुआ होगा, जिसको एक छोटा सा बच्चा 7 years ओल्ड उसको ये कह रहा है कि डोंट वरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो ये मन में निश्चय करके नरेटर वहां से निकला कि कैसे भी हो मैं सबको बचाऊंगा। By the morning of January 6th, the wind eased. To be sure, the narrator calculated their position again and again. अब जनवरी 6 जब वो सुबह हुई तो देखा कि कुछ हवा शांत हुई है, थोड़ा सा उसका जो स्पीड है वो कम हुई है। तो नरेटर ने बार बार मैप्स, चार्ट्स पर कैलकुलेट कर रहा है कि जो मैं एम्स्टर्डम आइलैंड की तरफ बढ़ रहा हूँ, अगर इतना विशाल ओशियन है, अगर छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई तो वो एक छोटा सा आइलैंड मिस हो जाएगा। और वही उनकी एक आशा की किरण थी, अगर वो आइलैंड मिस हो जाता तो उनकी लाइफ और भी डेंजर में चली जाती। तो वो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था और दे वर वेरी सैड। इतने में उसकी बेटी स्यू, शी केम टू हिम एंड गेव हिम ए सेल्फ मेड कार्ड। उसने एक छोटा सा कार्ड बनाया हुआ था छोटी सी बच्ची ने, जिसमें कि बड़ी फनी तरीके से उसने अपने मदर और फादर की पिक्चर ड्रॉ की हुई थी। और वो देखकर नरेटर और उसकी वाइफ हंस पड़े कि ऐसे सैड मोमेंट में भी उस बच्ची ने उनको हंसाने की कोशिश की। सो इन होप ऑफ सीइंग, अब जो कैलकुलेशंस नरेटर ने की थी उसके हिसाब से उनको शाम को 5 बजे तक वो आइलैंड नजर आ जाना चाहिए था। अब पूरी कैलकुलेशंस करके बार बार, और वो थोड़ा सा सो गया, एक छोटी सी नींद ले ली उसने। और जब उसकी नींद खुली तो उसने थोड़ा सा बाहर देखने की कोशिश की, कुछ भी नजर नहीं आया। तो वो बेचारा और निराश हो गया, सोचा कि हमने मिस कर दिया आइलैंड को। बट इतने में ही जॉन एंड स्यू केम रनिंग टू हिम एंड दे woke him up and said that we want to hug you. उसने कहा वाई, आज नहीं, बिकॉज आई हैव लॉस्ट द आइलैंड, आइलैंड में हम नहीं पहुंच पाए। दे सेड नो, the island is there, we can see it, and you are the best father and we want to hug you. So the narrator भागकर बाहर आया एंड दूर उनको एम्स्टर्डम आइलैंड नजर आ रहा था। जो वो लोग वहां पहुंचे, फिर तो कहते हैं ना, जान में जान आ गई, लगा कि अब हम सब बच जाएंगे। तो वहां पहुंचे, जैसे कि मैंने बताया वो एक साइंटिफिक बेस था, वहां कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते थे और कोई वेजिटेशन नहीं था वहां पर। तो वो लोग वहां पर पहुंच गए और जितने लोग वहां पर, केवल 28 इनहेबिटेंट्स थे उस आइलैंड पर, उन सब ने उनको वेलकम किया, चीयर किया, उनको जो भी वो उनको हेल्प कर सकते थे वो किया। और नरेटर कहता है कि एक बार जैसे ही जमीन हमारे पैरों को लगी तो हमारी उम्मीद जो थी वो लाइफ के प्रति बढ़ गई और हमें लगा कि अब हम सेफली आगे बढ़ जाएंगे। बोट को रिपेयर किया, कुछ दिन वहां रुके और फिर आगे अपनी जर्नी पर चले गए। सो इज द लेसन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, my dear learners? So let's move on to the multiple choice questions. As I told you that now from this session onwards, more weightage is being given to
multiple choice questions. So let's see few of these questions, because they are right now you cannot find them in the guides and reference books, etc. So I'm giving more stress on these MCQs. So the first question, so is the lesson clear to all of you, my dear students, my dear learners? Yes, the story is really very nice, and it gives you family values that if we all are together, we can save ourselves. We have to be patient. That helps us. Nice. So let's move on to the multiple choice questions. Get ready. Good. This time you are able to see the screen also. So that will help you. तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी लेसन हम करें तो लेसन का नाम विद द ऑथर, विद द राइटर आपको हमेशा याद होना चाहिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन एज ऑलवेज इज name the authors of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. And the options are Kamala Das, Larry Vigil, Jordan Cook and Ellen East, Herb Seigler and Kamala Das, Ted Hughes and Larry Vigil. So which is the right answer? Let me give you. Jordan Cook and Ellen East. So you have to remember this name, right? Now, what was the name of the boat? This you may remember. मैंने बताया था ना बोट का नाम क्या रखा था. I have given you few options: Wavewalker, Seawalker, Titanic, Sea Cruise. So the correct answer is yes, Wavewalker. Good. Let's move on to the next. Which part of the journey was pleasant and smooth? You all remember. अभी अभी हमने स्टोरी पढ़ी है ना. क्या the whole journey was pleasant? No. Last part of the journey was pleasant? No. The first phase from Plymouth to Cape Town. Yes. This part of the journey was very pleasant and smooth. The fourth option is none of the above. So that we do not need, because the third option is the correct option. Now, the next question is, what were the names of the two sailors whom the author hired from Cape Town? Cape Town से दो sailors add किए थे ना, बड़े experienced. तो क्या नाम था उनका? This time you have to name them. Yes, there are few options which you can see. Larry Vigil and Ted Hughes. Then the next option is Larry Vigil and Herb Seigler. Then the option is Herb Seigler and Ted Hughes. Then Ted Hughes and Jonathan. So the correct option is the B option, Larry Vigil and Herb Seigler. Now the next MCQ is, when did the waves start getting gigantic? Gigantic means giant, means बहुत बड़ी. तो कब? December 25 को, December 31 को, December 20th को और January 2 को. So let me give you this answer. Yes, January 2. Now let's see what is the next question. When did they get the first indication of the coming disaster? कब उनको लगा कि अब कुछ बहुत ही आपात स्थिति पैदा होने वाली है, कुछ बहुत ही मुसीबत सी आने वाली है? When strong wind started blowing, जब और तेज हवाएं चलने लगी.
when it started raining, जब बारिश होने लगी, when winds dropped and the sky grew dark, or none of the above. तो याद है मैंने एक सेंटेंस बोला था, तूफान आने से पहले की शांति. तो क्या हुआ था? Winds dropped and the sky grew dark. So this C option is the correct option. Now, how did the explosion affect the ship? हमने पढ़ा ना, ऐसे जैसे बॉम्ब फट गया, तो उससे शिप को क्या नुकसान हुआ था? The ship started sinking. The ship broke into pieces. The ship turned upside down. A torrent of green and white water broke over the ship. So the correct answer is पूरी शिप पर पानी ही पानी हो गया. ये अफेक्ट हुआ उस टाइम वेव का. Who said we are sinking? किसने कहा था ये बात? We are sinking. याद करो. Sue, his daughter? No. Jonathan, his son? No. Mary, his wife? Yes. You're right. This is the correct answer. Or his crewman? No. This is not the right answer. So option C is the right answer. Now, what had happened to Sue? याद है Sue को क्या हुआ था? कुछ नहीं. She was fit and fine. She had a deep cut on her leg. Leg में चोट लगी थी. She was sick. बीमार थी वो. D option says she had a bump on her head and a deep cut on her arm. अब जिसने ध्यान से मेरी साथ समरी को सुना है, वो इस आंसर को फटाफट दे देगा. Yes, option D. She had a bump on her head and she had a deep cut on her arm. Let's move on to the next. Where did they reach in order to save themselves? अपने आप को बचाने के लिए वो किधर पहुंचे? अमेरिका, एम्स्टर्डम, जर्मनी या इंडिया आ गए? कहाँ गए थे? आई एम श्योर आप सबको याद होगा. यस, एम्स्टर्डम, आइलैंड, एम्स्टर्डम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड दे रीच एम्स्टर्डम? कितने बजे पहुंचे थे? अभी बिल्कुल लास्ट में हमने ये बात आपको बताई कि नरेटर की कैलकुलेशंस क्या थी कि वो 5 PM इन द इवनिंग तक एम्स्टर्डम पहुंच जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हुआ था. सो बाय व्हाट टाइम डिड दे रीच? अराउंड 6 PM इन द evening. So there are various options. You may tick the correct one. Now the next is, who said we are not afraid of dying if we all can be together? किसने कही थी ये बात? इतनी टचिंग बात किसने कही थी? मैंने आपको बताया था ना. Yes, I have given you some options. William Douglas, Mary, Jonathan, Sue. So who said this? Yes, the son, Jonathan. This is the correct option. Why was the author getting hugs? क्यों बच्चे उसको हग कर रहे थे? Because he found the island? Because he is the best daddy in the world? Because he brought sweets for his children? None of the above. अब मुझे लगता नहीं कि मुझे इस आंसर को बताने की जरूरत है, because I know ये आंसर आप सबको पता है. Yes, he found the island. Let's move on to the next. How long did they stay on the island? कितना रहे? 1 month, few days, 2 years, few weeks. Yes, few days. अच्छा, एक वर्ड आया था मेडे कॉल. ये मेडे कॉल क्या होता है? What does मेडे कॉल mean? I have given you options. Let me discuss them first. Call made in the month of May? No, it's not. Then call made to help? किसी की मदद करने के लिए? ऐसा कहाँ करते हैं लोग, बहुत कम करते हैं किसी. Distress call for help? Yes, this is the correct option. मेडे कॉल होता है जब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप हेल्प के लिए कॉल करते हैं. So none of the above तो होगा ही नहीं. So these were the few MCQs, और
I request you all to go through the lesson once and then read the summary once again, and I'm sure the whole lesson will be very, very clear to you all. So, is the lesson very clear? Yes, I'm sure you all have understood the lesson. So, now what you have to do is, if अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सब लाइक कर दिया कीजिए, हर वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, तो मुझे उससे बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया लेसन को, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश और ऐसी बहुत सारी वीडियोस, राइटिंग स्किल्स भी अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, रीडिंग स्किल्स भी करेंगे. सो जस्ट डोंट वरी, we'll keep in touch. And this is all for tonight. Thank you.